if we talk of the behaviorist school of thought, it is one of the comprehensive school of thought in the history of psychology, you can say. और हमको लगता है कि बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ये सबसे बड़ा फोर्स मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षा मनोविज्ञान और फिर शिक्षा जगत के लिए है. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नेम ऑल द brilliant psychologists associated with this school of thought, but we shall name some which is very near to the education as a discipline, as a concept. So what are those? Some behaviorists are Ivan Pavlov. We have already read the learning theory of Ivan Pavlov in the name of classical conditioning, we can say. B.F. Skinner, operant conditioning. E.L. Thorndike, trial and error. Watson, he is being considered as the father of behavioristic school of thought, you can say. And there are other names. As I have told, it is very difficult to name all those. कुछ बाद में भी है. And if we peep into the history of psychology, we will come to know that there are there are behaviorists and there are later behaviorists, जिसमें हल वगैरह भी बाद में आके ऐड हो जाते हैं, और सोशल लर्निंग अप्रोच से संबंधित भी बहुत सारे जो बाद में हम पढ़ेंगे उसको भी बहुत जगह आप देखेंगे कि वो लेटर बिहेवियरिस्ट के रूप में आ जाते हैं. और लेटर बिहेवियरिस्ट और बिहेवियरिस्ट के बीच में जब बात करेंगे तो थोड़ा डिफरेंस उनमें भी आपको नजर आएगा. दिस इज नॉट ए क्लास मीन्ट फॉर साइकोलॉजी एंड आई एम नॉट ए पर्सन कैपेबल फॉर टॉक ऑन इन डिटेल रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी. सो ब्रीफ में हमने आपको बताया कि बिहेवियरिस्ट स्कूल में जो हमारा लर्निंग का एस्पेक्ट है उसमें जो इम्पोर्टेंट नाम है उसमें यही 3-4 नाम है, और बाकी हल की भी चर्चा हमने करी दी, कुछ सोशल लर्निंग थ्योरी की भी बात कर दी. सो इवान पैवलोव, B.F. स्किनर, थॉर्नडाइक, वाटसन, द फादर, जिसने कहा था कि तुम मुझे एक बच्चा दो, मैं वातावरण को नियंत्रित करके उस बच्चे को जो चाहूं बना. और इस दृष्टि से ये वाटसन का जो कंसेप्ट था वो हेरिडिटरी फैक्टर को बिल्कुल इग्नोर करता है. बाद के मनोवैज्ञानिकों ने इसमें थोड़ा संशोधन किया, लेकिन हम लोग चूंकि कर भी नहीं सकते हैं और हमको करना भी नहीं है तो हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे. सो व्हाट इज ए वर्ड? दैट इज इन्वायरमेंटलिस्ट. अभी हमने कहा तुम मुझे एक बच्चा दो, मैं बच्चा को वातावरण को नियंत्रित करके उस बच्चे को जो चाहूं. तो प्रोपाउंडर जो वाटसन था उसका यही मानना था. सो इन दिस कंटेक्स्ट द बिहेवियरिस्ट आर इन्वायरमेंटलिस्ट, बिलीव्स इन इन्वायरमेंट, नॉट इन हेरिडिटी. तो सब कुछ इन्वायरमेंट से किया जा सकता है. इफ वी टॉक अबाउट सम ब्रिलियंट कंट्रीब्यूशन ऑफ this behaviorist school of thought in terms of learning, we can say connection, stimulus response theory, association, and connection between whom? Between a stimulus and response. मतलब a stimulus and response are related. By increasing this, rather by strengthening this bond between the stimulus and response, the learning could be facilitated. This is the view of behaviorist school of thought. So connection, association between a stimulus and response, and conditioning. Also there is a stimulus and response. So in the concept of learning as per behaviorist school of thought, the response, the
connection between this stimulus and response is very important. So the bond between SR and one important concept that came through different learning theories is reinforcement, which we have also talked in trial and error learning theory regarding reward, और फिर associative shifting that became the basis for this classical conditioning and operant conditioning. So connection, association, conditioning, bond between a stimulus and response, reinforcement are the contribution of this school of thought directly linked with learning. So reinforcement, the biggest contribution, one of the biggest contribution you can say, और वो इसीलिए हमने पिछले क्लासों में जब डिस्कशन किया क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग की, तो बताया कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का कंसेप्ट था रीइंफोर्समेंट, इट वाज सो रिवोल्यूशनरी दैट थ्रू प्रोग्राम लर्निंग इट गेव बर्थ थ्रू ओपन लर्निंग, यू कैन से इन मॉडर्न वर्ल्ड, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, प्रोग्राम लर्निंग, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल लर्निंग, मटेरियल डेवलपमेंट, और वो प्रोग्राम लर्निंग से ही शुरू हुआ. एंड writing objectives in behavioral terms, because behavior is overheard, behavior can be measured. So reinforcement, individualized learning and objectives in behavioral terms are the greatest contribution of this school of thought. तीन और आगे भी हम लोग करेंगे, लेकिन वो उतना ये स्पेसिफिक तीन चीज आपको याद रखना चाहिए. रीइंफोर्समेंट, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, वही प्रोग्राम लर्निंग की तरफ आप कह सकते हैं, और राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म्स, जान सकेंगे, अंतर कर सकेंगे, तुलना कर सकेंगे, क्योंकि बाद में आप इवैल्यूएशन भी आसान हो जाता है. जब हम मॉडर्न लेसन प्लान की बात करते हैं तो उसमें क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म्स एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवैल्यूएशन. आपने कहा द लर्नर्स विल बी एबल टू डिफाइन ट्रायंगल, विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी. सो सिंस we can identify, rather write objectives in behavioral terms, its evaluation is also easy. कि लर्नर्स के बिहेवियर के माध्यम से हम टेस्ट भी कर लेंगे कि अंतर, हमने वहां कहा था कि अंतर कर सकेंगे, क्या अंतर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं. सो इट इज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन. और भी बातें हम आगे करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से रीइंफोर्समेंट, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग and objectives in behavioral terms, writing objectives in behavioral terms, और इसी के कारण objective based evaluation, मतलब जिस ऑब्जेक्टिव को बना के पढ़ाया उसको आधार बना के मूल्यांकन भी किया, संभव हो सका. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन. 3, reinforcement, individualized learning and objectives in behavioral terms. What are the key contribution of this school of thought, irrespective of these इंडिविजुअल थियोरीज? लॉ ऑफ रेडीनेस, सीखने के लिए सीखने वाले का तत्पर होना जरूरी है. वो कल भी उतना ही सत्य था, आज भी उतना ही है. और ये कि व्यक्ति के इंटरनल इनहिबिशन को घटाकर आपको, तब जब तक आप उसको रेडी नहीं करेंगे, योर टीचिंग इज नॉट इफेक्टिव बिकॉज लर्निंग हैज नॉट टेकन प्लेस. एज योर टीचिंग इज नॉट यील्डिंग मोर लर्निंग, इट मीन्स इट इज नॉट इफेक्टिव. तो ये बताया लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट. बच्चे को कभी हतोत्साह मत करिए, क्योंकि उसके दिमाग में यह भाव होना चाहिए कि वो सक्सीड कर सकता है, वो इस टास्क को पढ़ सकता है, तभी पढ़ सकता है. लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. अभी देखा, खास के मोटर स्किल के लिए तो ये बहुत जरूरी है. शेपिंग ऑफ बिहेवियर, जो जितने भी ट्रेनिंग का जो कंसेप्ट है वो सब
बिहेवियर को सेफ ही करना है। और जितने भी जिम्नास्ट बनना हो या फिर अच्छा क्रिकेटर बनना हो, अच्छा बॉलर बनना हो, इवन अच्छा ब्लैक बोर्ड राइट करना हो। सो शेपिंग ऑफ बिहेवियर, जनरलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, ये स्टिमुलस से रेस्पॉन्स को कनेक्ट करना और रेस्पॉन्स के अनुसार स्टिमुलस को प्रेजेंट करना। सो शेपिंग, ये जनरलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस एंड जनरलाइजेशन ऑफ रेस्पॉन्स। इनहिबिशन, अवरोध, बच्चे में जब अवरोध रहेगा, चाहे वो आंतरिक अवरोध हो या बाह्य अवरोध हो, तो उसकी लर्निंग फैसिलिटेट होगी। और फिर गोल, बच्चे को पता होना चाहिए कि वो क्यों पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पढ़ने से क्या होगा। मोटिव्स, बच्चे को मोटिवेट करिए, आप खुद भी मोटिव होंगे, टीचर का मोटिवेशन। सो मोटिव्स, चांस सक्सेस, चांस सक्सेस इज वेरी मच रिलेटेड टू लॉ ऑफ इफेक्ट। सो एंड प्रोग्राम लर्निंग, वो तो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन में ही आ गया। सो हम कह सकते हैं कि बिसाइड्स रीइंफोर्समेंट, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एंड राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म्स, द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन that has facilitated learning in the teaching learning situation are that of behaviorist school of thought, of course, are law of readiness, law of effect, law of exercise, shaping behavior, generalization of stimulus, generalization of response, inhibition, goals, motives, chance success, etc. So we have tried to understand the learning as a concept in the light of behaviorist school of thought. Now in another part of this comprehensive lecture, we shall be discussing cognitivist approach and learning in the light of cognitivist school. Thank you very much.